Hello friend, today I am going to take poem Oh Captain My Captain. This poem is written by Walt Whiteman. The poem is telling about the sad part of the poem. Straight elegy. Elegy means that something unhappiness happen in the end of the journey. And this poem doesn't create confusion about the inner meaning of the line. There are three stanza, and these stanza reflect mourning state of speaker. Mourning is that sad, unhappy state of speaker. Speaker start with a joyful shout, calling out his captain as he sees the port, and the ship is near the port. He speaks that trip is completed after exhausting journey, and they have emerged victorious. They have achieved victory over their journey. He hears the bell, people cheering for their victory in the sea. The people are very happy and expressing their happiness, and this mood change. The speaker find captain dead on deck. Speaker cannot believe that his captain is dead. He requests the captain to rise, to get up, as there are a lot of cheers, expectation for him on the shore, and the people on shore are waiting for him. He describes the tolling of the bell, flunks flag on his honor, Buggles playing, cheering of crowd with a bouquet and the wreath in their hand. He requests again captain to look at the eager faces of crowd. Oh captain, see, as he keeps his hand beneath the head of captain, and speaker is near to captain. Speaker feels that there is some sort of dream watching his captain dead on deck. He doesn't believe at the first. Captain is motionless. There is no movement in the captain's body. His lips turn pale, cannot feel the arm of speaker. The speaker observes that there is no pulse, nor does captain possess a will to live. As he mourns the death, the ship slowly reaches the port, completing its voyage. Speaker asked the bells to ring and the shore to exult on victory the ship was able to achieve. However, Speaker is aware of the captain's death and says that he will mourn for his captain who is dead on deck. Right? On one side, people are cheering, playing bugles, ringing the bells, they are waiting for the captain and everyone, but on other side, the speaker is feeling unhappiness over the death of captain. राइट तो दोस्तों कविता एक सीधी सादी छंद है वहां तीन पंक्तियां है जो आंतरिक कुछ ऐसा भ्रम पैदा नहीं करती है सीधे सीधे शोक अवस्था को दर्शाते हैं पोर्ट को देखते ही स्पीकर अपने कप्तान को पुकारते हुए हर्षित हो जाती है बहुत खुश हो जाती है वह कहता है कि यात्रा थकावट भरी थी लेकिन उन्होंने विजय हासिल कर ली है वह समुद्र में विजय के लिए घंटी और लोगों की जय जयकार सुन रहे हैं जैसे स्पीकर डेक पर अपने कप्तान को मृत दशा में देखते हैं तो उनका मूड बदल जाता है एक तरफ लोग खुश है बाजा बजा रहे हार माला लेके खड़े हैं जोर से चिल्ला रहे और एक तरफ जो स्पीकर है वो दुखी हो जाती है उनका मूड चेंज हो जाता है उनको विश्वास नहीं होता कि उनका कप्तान मर चुका है दोस्तों वो कप्तान को उठाने की विनती करते हैं रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि किनारे पे बहुत सारे लोग थियर्स और उम्मीद लाए बैठे हैं लगाए बैठे हैं वो घंटियां बजा रहे हैं झंडे लहरा रहे हैं बिगुल बजा रहे हाथों में माला लेके गुलदस्ते लेके भीड़ जमा हो चुकी है ऐसा वर्णन कर रहे कैप्टन वो कैप्टन को भीड़ के उत्सुक चेहरों को भी बता रहे और प्रेरित कर रहे कि वह कैप्टन को दिखाए उसी समय वो विश्वास नहीं कर पाते और कप्तान के सर के नीचे अपना हाथ रखते हुए ये सब बातें कहते हैं और स्पीकर को लगता है कि यहाँ किसी प्रकार का वो सपना देख रहे दोस्तों राइट और उन्हें तो विश्वास ही नहीं है पहली बात तो इसीलिए वो कहते कि वो शायद सपना तो नहीं देख रहे हम्म और कप्तान जो है वो गतिहीन है कोई उनमें हलचल नहीं उनके होठ पीले हो चुके हैं और स्पीकर अपनी
बाहों को उनके पास रखते हुए भी महसूस नहीं कर पाते कप्तान। वो देखता है कि ना कोई यहाँ पर उनकी सांस चल रही, ना कोई उनमें इच्छा शक्ति है जीने की, जैसे वह शोक मना रहे हो। जहाज धीरे धीरे अपनी यात्रा पूरी करते बंदरगाह तक पहुंच जाती है। वह घंटियां बजाने के लिए कहते हैं, किनारे पे विजय प्राप्त करने के लिए जहाज पहुंच जाती है। और हालांकि स्पीकर कैप्टन को मृत देखते हुए ना खुश होते हुए दुखी हो जाते हैं। उन्हें तो पता भी नहीं कि वो खुश हो या दुखी हो। एक तरफ लोग हैं जो उन्हें देखकर खुश हो रहे हैं, लेकिन वही कैप्टन मृत है। और स्पीकर को अंदर ही अंदर वो बात खाई जा रही है कि हमने यहाँ तक विजय हासिल की है, यहाँ तक हमने यात्रा पूरी की है, राइट। वो सफलता हासिल करते हुए यहाँ तक पहुंचे और उनके कप्तानी उनके बीच नहीं रहे। ये उस कप्तान के बारे में कहा गया है, राइट। तो ये इस तरह की पोएम एक दुख भरी कहानी सुनाते हुए उनकी जो सफलता है उसको भी गुण गाते हैं कवि यहाँ पर कप्तान के बारे में। और खुद पोएट, खुद कवि ही स्पीकर है इस कविता की, राइट। ओ कैप्टन माय कैप्टन, ये टाइटल है इस पोएम का। थैंक यू।